सीधे आपको लिए चलते संसद की कार्यवाही इस वक्त शुरू हो चुकी है। सांसदों की शपथ होनी है। प्रधानमंत्री की ये तीसरी पारी है जिसको लेकर उन्होंने आभार भी जताया और ये भी बताया कि किस तरह वो तीन गुने तरीके से आगे काम को करने वाले हैं। सबसे पहले जो प्रक्रिया रही, प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ली, उसके बाद अब जो सांसद, नवनिर्वाचित सांसद हैं वो शपथ लेंगे इस प्रक्रिया के तहत, और विपक्ष जो है वो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर ही नाराजगी जता चुका है। अब स्पीकर की रण भी सामने है। तो 18वीं लोकसभा का आज पहला दिन और हंगामेदार होने के आसार जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी तस्वीर आप देखिए, संविधान की कॉपी के साथ विपक्ष का मार्च भी शुरू हो चुका है। तो हंगामे के आसार के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, एक बड़ी बात यहां पर प्रधानमंत्री ने कही कि 50 साल पूरे होने वाले हैं इमरजेंसी के। कल पूरे हो जाएंगे 50 साल। ऐसे में जो पहला दिन है, पहला सत्र है, उसका आगाज हो चुका है। जो संभावनाएं प्रधानमंत्री की तरफ से व्यक्त की गई कि सुचारू रूप से चल सके पूरा का पूरा सत्र, ताकि कई अहम फैसलों को यहां पर अमल में लाया जा सके। देखिए, बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को ध्यान में रखकर ये सरकार काम करने वाली है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को नाटक नहीं, हंगामा नहीं चाहिए। देश को नारे नहीं, सब्सटेंस चाहिए। एक देश को अच्छा विपक्ष चाहिए जो अच्छे विपक्ष की जिम्मेदार भूमिका निभा सके और देश को आगे बढ़ाने के लिए ये भी कहा कि जो इमरजेंसी थी उसकी 50वीं वर्षगांठ जो है, जो देश के ऊपर, संविधान के ऊपर एक काला धब्बा था, उसको जो है We are meeting today on this first sitting of 18th Lok Sabha, which is a solemn occasion. A new Lok Sabha vested with great and onerous responsibilities for ensuring the welfare of the entire country and our people has been elected under the Constitution. Considering the solemnity of this occasion, and as is customary, we may all stand in silence for a short while before we begin our proceedings. Om Shanti. I congratulate all the members who have been elected to the 18th Lok Sabha. It gives me great pleasure to welcome all the members. I'm sure you will all help the chair in maintaining the high tradition of this house and thereby strengthening the edifice and the roots of our democratic polity. I wish you all success in your endeavor. Now I would request the Secretary General to lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of the members elected to the 18th Lok Sabha at the general election of 2024, submitted by the Election Commission of India. Sir,
I lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of members elected to the 18th Lok Sabha at the general elections of 2024, submitted by the Election Commission of India. I have to inform the House that the Honorable President has nominated the following members as members of the panel of chairpersons: Sri Suresh Kodikonal, Sri Talikotai Rajuthevar Balu, Sri Radha Mohan Singh, Sri Fagan Singh Kulaste, Sri Sudeep Bandyopadhyay. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received Please have your seat. Please have your seat. Now here is an important announcement to make. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received a letter dated 17th June 2024 from Sri Rahul Gandhi, an elected member from the Wayanad parliamentary constituency of Kerala, resigning his seat in Lok Sabha. The Honorable Speaker has accepted the resignation of Sri Rahul Gandhi with effect from 18th June. The names of will now be called by the Secretary General for the purpose of making and subscribing. 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो चुका है। प्रोटेम स्पीकर को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने उन सभी मेंबर्स का स्वागत किया जो पहली बार चयनित होके 18वीं लोकसभा में शामिल हो रहे हैं। अभी हालांकि थोड़ा हंगामे की स्थिति वहां पर है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर भी विपक्ष ने अपनी आवाज बुलंद की थी, उन्होंने इनका विरोध किया था। हालांकि आज सुचारू रूप से संसद चले, इसकी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले की। 18वीं लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ऐसे में संसद परिसर में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों की नारेबाजी भी हमने देखी। सरकार के खिलाफ और संविधान बचाओ के नारे लगाए गए। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी और तमाम सहयोगी दल के नेता शामिल हुए। और जैसे ही शुरुआत हुई हंगामा भी हुआ। हालांकि प्रोटेम स्पीकर ने बताया कि राहुल गांधी का जो वायनाड से सीट से इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया है, वो क्योंकि ये पहले राहुल गांधी की और पार्टी की तरफ से तय किया गया। वायनाड और रायबरेली दो जगहों से राहुल गांधी जीतकर आए थे, यानी दो जगह से सांसद थे। नियमतः आप एक जगह के ही सांसद रह सकते हैं और इसलिए ये पहले ही मतलब 13 दिन पूरे होने से पहले ये जानकारी देनी होती है। उसके बाद ये जानकारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई। वायनाड में अब प्रियंका गांधी उतर रही हैं। विपक्ष पर किस तरह प्रधानमंत्री जब अपने संबोधन में बोलते नजर आए तो निशाना साधते नजर आए, सुनिए जरा। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है।